दमोजी राणा बोल दिए। ये फाइनेंस के रिलेटेड ही है क्वेश्चन। एक फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, वो फैमिली के ऊपर कर्ज है, तो ये कैसे मैनेज करिए कर्ज को रीपे करने के लिए? कैसे मैनेज मतलब डेट मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, मतलब बैंक का भी कर्जा है, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी है कर्जा, और ये जॉइंट फैमिली मतलब पेरेंट्स ने लिए होंगे, तो अभी ये उसके बच्चे मतलब सन उसको कैसे रीपे करेंगे? क्या मतलब उसको क्या, क्योंकि सोर्स उसके पास इतने नहीं है रीपे करने के लिए, वो रीपे करना चाहता है, तो हाउ ही मैनेज ऑल दिस डेट्स एंड कैसे मैनेज करें वो? मैंने जब हमारी फाइनेंशियल हेल्थ की बात चल रही थी तब हमने बताया कि आपका लाइफस्टाइल, बेसिक नेसेसिटीज प्लस योर ड्रीम्स प्लस योर फैंसीज, these are the three things, categories of your style of living, and your income. And whenever you have this debt through any reason or whatever reason, you have to, your income should be 2x, or when there is burden of loans and debts, you should have income of 3x. Okay. X is your expenses. Now what you can do is, your earning is known, expenses is under your control. So according to your income, initially you have to balance your expenses. Okay. Initially, till your income does not get sufficient enough to take care about other things. So, and you should be in search of improving your income through multiple resources. Suppose you are doing job, you don't depend only on job, you do side business or side some activity by which you earn side income. Suppose you are doing your job 9 to 5, so 8 to 6 you are busy. So after 6 o'clock or 7 o'clock you do some other activity for 3-4 hours, by which you can raise extra income. Or you upgrade yourself. Upgrade means, suppose you are doing job at X level, now if you want to go to higher level, you have to upgrade yourself. No one is going to promote you unless you are upgraded. So you have to see, prepare yourself for upgradation. Okay. Suppose you are a worker, then from worker you have to become a supervisor. So if you want to go from worker to supervisor, you have to upgrade yourself in education, your training, your other things. So you reach there, then you want to, from supervisor you want to become a manager, then you should have knowledge of management. Upgrade yourself to the management. This is about administration. If you are in some technical job, then you are a helper, then you become a technician, then you become a senior technician, then you become a technocrat. Like that you have to upgrade yourself. So your skills has to be upgraded to earn more. Nobody is going to give you more unless and until you upgrade yourself. Whether you are doing job or you are doing business. In business, you have to upgrade yourself daily basis. Daily you have to upgrade yourself. You have to be above others. Every day you have to visualize yourself. When people reach there, you reach there 5 years before people reach there.
This is the way you should visualize while doing business. Business. While doing your job, you have to visualize yourself where you want to reach. Mhm. When my first son, who wanted to do job, we are business people, he wanted to do job. So I told him, okay, you make 20 years plan, where you want to reach, first decide. So he said, I want to reach chairman of an organization. So you work in 20 years, you will become chairman, provided you work towards it. Mhm. And what is required at every level, where whatever level you are there, you have to see 3 levels higher what they are doing Okay. and what they have, how they have reached there. Find out and prepare yourself for that 3rd level. So automatically lower level will come. Then your promotion will be faster. You don't have your vision, you do दुख करके जैसे रोज काम करते रहोगे, so you are nobody is going to pick you up and put higher. So you have to upskill yourself, whether in a business, in a daily basis, in your job, you have to upskill yourself with the skills set, with your communication. Communication is the very important thing in your professional world. Whether you are in a business or in the job, your communication has to be such that everyone should start loving you. Caring and sharing communication. This is only which will make you a good leader. And a good, if you are a good technocrat. So, communication, your character, your skills, everything has to be upgraded continuously. This is going to lift you up. And this is going to take over your burdens of debts and loans. One day, if you do this, or the way I am telling you, in 3, 4, 5 years, you will be in a confident level. Suppose you have taken a loan of 10 lakhs. After 5 years, you will take loan of 10 crores and don't worry also. Because you are confident. You know how to take care of all those things. Yes. My Bhatija is there. My brother and Bhatija has always worked through loans. Okay. So 1 week back, my son was talking with me. Okay, he has good guts to take loan, and my son does not have guts to take even loan of 10,000 rupees. Does not have guts because there is never a need to take a loan. So he has never gone through that process, and he fears loan. Fears loan. I said, you want to do business, you want to grow. I am not going to give you money now. I have made to. हमने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया. अभी आपका आगे का काम आपको करना है. आपको ग्रो करना है. आप अपने पैसे लेके आओ, अपना सब अरेंज करो, आगे बढ़ो. देखो आपके कजिन ब्रदर को, वो 3 करोड़ 5 करोड़ की लोन ऐसे लेता है चटके में, क्योंकि उसको 2 करोड़ की लोन एक बार रीपे कर दी है. लोन लिया तो रीपे करने की हिम्मत रखता है 5 साल में. तो उसको कॉन्फिडेंस आ गया कि 5 साल में मैंने लोन 2 करोड़ दे दिया, तो अभी 5 करोड़ में लोन लेकर मैं 5 साल में दे सकता हूँ. करूंगा ऐसी मेहनत, उसको वर्कआउट करूंगा. आपको एक गोल मिल गया, एक आपका टारगेट मिल गया, ज्यादा काम करने का मोटिवेशन मिल गया. और यहाँ लोन लेते नहीं हो और डरते हो लोन लेने को. तो कुछ भी होगा तो पापा ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो. यू आर पैरासाइट. You have to grow now. I am not going to do anything. So, upskill yourself. Plan yourself. Strategize yourself. Continuous सीखना ही पड़ता है. Continuous. इस दुनिया में कुछ स्टैटिक नहीं है. हर चीज परिवर्तनशील है. आपको ग्रो करना है, लेकिन वो हिसाब से काम नहीं करना है तो कैसे काम चलेगा? अपने आप तो कुछ होता नहीं है, करना ही पड़ेगा. आपको ही सब करना पड़ेगा. यही तो मैं बोलता हूँ, माइंडसेट बनाओ, आप गोल्स बनाओ, टारगेट बनाओ, हाउ टू अचीव दैट.
जैसे जैसे आप टारगेट रखोगे ऐसे ऐसे आप अचीव करते जाओगे। डरना नहीं है किसी भी सिचुएशन से, किसी भी उससे। जिस प्रकार आपने सवाल पूछा ना, फियर, वो जो सवाल पूछा आपने, इट दैट क्वेश्चन वाज ओनली दैट क्वेश्चन इटसेल्फ वाज कमिंग फ्रॉम फियर। फियर सवाल में ही फियर दिख रहा है, पूरे फैमिली में दिख रहा है। जिसका आप सवाल पूछ रहे हो वहां फियर ही दिख रहा है। हाँ। क्योंकि वो लोग जो कर रहे हैं फियर, वो उसको सुधारना, अपने आप को अपग्रेड ही नहीं करना है। क्या करने से हमारा ये, हमको ये इससे कैसे मुक्ति मिल जाए, उसके ऊपर वर्क ही नहीं करना है, कंस्ट्रक्टिव वर्क। मैनिपुलेसिव लोग मैनिपुलेशन में चले जाते हैं। मैनिपुलेशन में जो इंसान गया वो जिंदगी भर कभी ऊपर नहीं आएगा। और जो अपग्रेड करता है, अपस्किल करता है अपने आप को और लगे रहता है, वो आगे बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस दिन ब दिन बढ़ते जाएगा और उस ऐसे लोगों को ही ईश्वर शक्ति देता है। और साथ में ये गाइडेंस हो, बैकबोन हो, गुरुकुल हो, उसको राइट मार्गदर्शन देगा। स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग केयर ऑफ ऑल दी जोन्स ऑफ लाइफ, फिजिकल, मेंटल। ऐसे इतना भी वर्क मत करो कि फिजिकल को डिसरिगार्ड करो, इतना वर्क मत करो कि आप फैमिली को डिसरिगार्ड करो, बैलेंस करके। इतना वर्क मत करो कि वर्क ही वर्क करो, पैसा कुछ नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो सब लोन में जा रहा है, हाथ में कुछ बच नहीं रहा है। 15-20 साल ऐसे ही चले गए तो पैसे आए और गए। आपने कमाए किसके लिए? बैंक के लिए। आपके पास क्या बचा? सही बात है यही। या बैंक के लिए कमाया, या आपने जिससे कर्ज लिया है उसके लिए कमाया, उसका घर चलाया, आपका तो कुछ चला ही नहीं। उनके लिए ही काम किया ऐसा लगता है, और हमेशा बर्डन में काम किया। बर्डन। तो ये क्रिएटिविटी एंड अपस्किलिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैं ये नहीं कर सकती कि मैं ये नहीं कर सकता, ये दिमाग से हटा दो ये वायरस। आई कैन डू एनी डैम थिंग, आई कैन डू impossible things and I will achieve it. That should be your spirit. इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, इसलिए मेरा कुछ नहीं हुआ। उसने वो नहीं किया, मेरे मम्मी ने कुछ नहीं किया, पापा ने कुछ नहीं किया, मेरे दोस्त लोग ने कुछ नहीं किया, बैंक ने कुछ नहीं किया, हमारे वर्कर ने कुछ नहीं किया, कलीग ने कुछ नहीं किया, मेरे साथीदारों ने कुछ नहीं किया, इसलिए मेरा ऐसा हाल है। मेरे को सब लोग ही ऐसा मिले। लोग ऐसे नहीं मिले, तूने ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया है क्योंकि तेरे दिमाग में ही ऐसा है कीड़ा। समझ गए यार? एक माइंडसेट बताता हूं मैं। जैसे आप कोई ग्रुप में जाते हो ना, कोई भी नया ग्रुप, आप किसको सिलेक्ट करेंगे उस ग्रुप में? जो सबसे बेहतर कर सकता है उसको नहीं करेंगे आप अपने जैसे मुर्दाल को ही ढूंढेंगे ग्रुप में। मेरे कैसे सोचने वाले वो फेस से देख देंगे, आपको पता चल जाता है कि ये मेरे वाला है, ये मेरे जैसा है, उसके साथ आप लग जाएंगे। नेवर डू दिस व्हेन यू आर थ्रोन इन स्ट्रेंजर ग्रुप। सी द बेस्ट एंड बी फ्रेंड एट बेस्ट। दिस इज एन एटीट्यूड। कुछ गुण है, ऐसे गुणियों से मिलो हाँ। और उनसे दोस्ती करो। किसी ने कुछ पाया है, ऐसे लोगों से दोस्ती करो। और दोस्ती आप उनसे तब कर पाओगे जब उसको लगेगा कि आप भी उस ऐसे कीड़े वाले हो, उस मेंटल लेवल पे हो, उस फ्रीक्वेंसी लेवल पे हो, तो ही वो आपको स्वीकारेगा। और आपकी ये फ्रीक्वेंसी है तो सामने वाले को पता चलता है। हाँ। समझ गए? और एक मुर्दाल के जैसे आता है, अभी जाना है मेरे को, तो जाता है, वो खड़ा रहता है, तो वापस ऐसे मुंह धोकर वापस आ जाता है। लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। या दूसरा वाला अपने वाले जैसे लोग के साथ मिलेगा, खाएगा, पिएगा, वापस आ जाएगा। उसको लगा हाँ अपने वाले सब मिल गए,
मेरे जैसे है बहुत लोग हैं दुनिया में, उसी के साथ वो चलेगा, वो कभी भी ऊपर नहीं आएगा। So all mindset matter much. आप you should wherever you go you have that mindset. आप ऐसे ही ढूंढ रहे हो कि भाई मेरे से जहां मैंने क्या बताया, थर्ड लेवल तक का सोचो पहले, एकदम टॉप पे मत सोचो कि वो तो जो आउट ऑफ रीच लगे, आपके आउट ऑफ रीच है। थर्ड लेवल तक आपकी रीच में है ना, उनके साथ वो कैसे वहां क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसके साथ दोस्ती करो। ही इज इन लाइन ना, उसको भी इंटरेस्ट है आपके अंदर, क्योंकि उसको आपके लेवल पे क्या चल रहा है वो जानना है। तो मैंने ये ट्रिक बताया, वो इतना ट्रिक सक्सेसफुल है, तो वो जहां भी काम करता है उसको नहीं निकालते, बाकी सबको निकाल दिया। ये लॉकडाउन में निकाल दिया, उसको निकाल दिया, उसको इसको नहीं निकालता है कोई, क्यों काम का आदमी है। वो जो बोलता है करने, दूसरा मैंने वो सिखाया, जो बोले करने का, रात दिन नहीं देखने का, अपना फोन ऑन रखो। दूसरे लोग जैसे कंपनी छोड़ दिया ना, वो वहीं स्विच ऑफ करके घर जाते हो, कंपनी का फोन साइड पे, फिर दूसरे दिन जब कंपनी में जाएगा तब स्विच ऑन करेगा। मैंने बोला तेरा फोन 24 घंटा चालू रहेगा, क्योंकि तू बिजनेस ये नौकरी नहीं कर रहा है, तू बिजनेस कर रहा है। नौकरी की जगह पर बिजनेस कर रहा है। तेरी नौकरी कभी नहीं जाएगी, तू नौकरी का बाप है, तेरा कोई बॉस नहीं है। तू जिस जगह पे बैठा है तू बॉस है, बॉस, खुद का बॉस। Have this mindset and you will always be winner. Thank you. Upskill yourself. Have attitude of retrieving and burning desire continuously. मैं ये नहीं कर सकता, मेरी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर इस दुनिया में एक इंसान भी एक कुछ काम कर सकता है ना, तो मैं वो कर सकता हूं। That should be killer instinct. ये बर्निंग फायर होना चाहिए। फायर, देयर इज नो हॉलीडे फॉर मी, देयर इज नो टाइम फॉर मी। कभी किसी को टाइम मत दिखाना। 6 बजे का टाइम है, 5:30 हो गया, चला हाथ धोयला, गवर्नमेंट हाथ धोयला चला, बस हात धुरा जीवनभर। जेवणचा टाइम झाला, 10 मिनिट बाकी आहे, चला गप्पा मारूया, मग जेवणला जाऊया, मारा गप्पा। आणि वो जिंदगी में यही करते रहेगा। आज सुट्टीचा दिवस आहे, काम नाही करणार मी, मत करा, नको करा, राहा तिकडेच, राहणार तिकडे, कोण बोलवणार नाही तुम्हाला। आणि दुसरा माणूस करतो रविवार शनिवार काहीच नाही। my target is I want to reach there. How fast I reach there is important. All days are same for me. There is no holiday. There is nothing like holiday and there is nothing like retirement in this world. Only your mindset has put that, and you are blocking your energy and your creativity and your upgradation. You are blocking, nobody else. जो लोग ग्रो नहीं हो रहे हैं इसके माइंडसेट के कारण, वो खुद ही ब्लॉकर्स हैं। और ये लोग ऐसे ब्लॉकर होते हैं, खुद भी अपना ब्लॉक करेंगे, दूसरे 4 लोगों को बोलेंगे अरे तू कशाला करतो, काय गरज आहे, काय गरज आहे, आपल्याला काय मिळतंय, काय मिळणार नाही, सेट देणार नाही। अरे मी सेट आहे, सेट काय देणार काय नाही देणार, मी सेट आहे, माझी जागाचा मी सेट आहे। विचारा असा, तुम्ही सेट होणारच। You have decided I am a servant, you will remain servant. I am the boss and there is no holiday, there is no timing for boss and there is no holiday, there is nothing like holiday. Every the moment you enjoy is holiday. Convert work into holiday. Start enjoying every moment. You are always in holiday. There is no pressure. आप जिंदगी में बीमार नहीं होंगे। बीमार किससे होता है?
बर्डन से होता है, प्रेशर से होता है, काम के प्रेशर। काम का प्रेशर कभी होता है नहीं। द वन हु एंजॉयज मोस्ट डज द बेस्ट वर्क with best efficiency and best output, and still that person will never get sick because that person is enjoying the work. क्यों? बिकॉज उसको सामने दिख रहा है मेरा टारगेट वो है, अब तो मैं यहां पहुंचा हूं, मुझे वहां पहुंचना है। वो पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या और फास्ट चलने के लिए क्या करना है, उसमें मैं अपना समय लगा रहा हूं। ये 6 बजे का जॉब पूरा हुआ, अभी मेरा टारगेट है मेरे को वो बॉस के लेवल पे पहुंचना है। वो बॉस के लेवल का जो स्किल्स है मुझे डेवलप करके वहां पहुंचने के लिए जो करना है कोशिश करूंगा और वहां पहुंच जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा, अपग्रेड करूंगा, तो मुझे लोग ऊपर बिठाएंगे ना, नहीं तो मैं वहीं पड़ा रहूंगा। काय रहे ये एटीट्यूड, समझ गए? यस यस, बहुत अच्छी तरह आपने सीक्रेट बताया सक्सेस एंड एंजॉयमेंट का। थैंक यू गुरुदेव।